مسٹر شاہزین، کیا آپ کو سویرا بنت علی اصغر سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز نے حویلی کے کشیدہ ماحول میں گونج پیدا کی، لیکن اس کے جواب میں صرف ایک گہری خاموشی تھی۔ بڑی محفل میں ہر شخص کی نظریں شاہزین پر ٹکی ہوئی تھی۔ تایا علی اکبر، چاچا علی اصغر اور گھر کی خواتین کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی تھی، جبکہ محفل کے کونے میں کھڑی سمن کے سرخ دوپٹے کی اوٹ سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ شاہزین نے اپنے سرخ پردی آنکھوں کو اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ وہاں اس کی منکوہا اس کی سمن کھڑی تھی، وہ لڑکی جسے آج رخصتی کر کے اس کے کمرے میں آنا تھا، لیکن قسمت اور سازش کے کھیل نے چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ سمن کو چھوڑ کر شاہزین کو اس کی چلاک کزن سویرا سے نکاح کرنا پڑنا تھا۔ شاہزین نے ایک نظر سویرا پر ڈالی، جو کہ کونے میں دلہنی اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ شاہزین کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے، لیکن سامنے کھڑے اپنے باپ کی عزت اور حویلی کے جھوٹے وقار کی زنجیریں اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی۔ مسٹر شاہزین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ شاہزین نے گہری گھٹن زدہ سانس لی اور سمن کی طرف دیکھتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ شاہزین کے منہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یوں لگا جیسے اس کا دل چھلنی ہو گیا ہو۔ قاضی صاحب نے 3 بار ایجابو قبول کروا اور کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ سمن نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا، اس کی ہچکیاں بند گئی۔ نکاح کے فوراً بعد حویلی کے باقی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر شاہزین کا وجود اندر سے جل رہا تھا۔ نکاح کی تمام رسمیں کسی حد تک ختم ہوئی تو شاہزین بھاری قدموں سے اپنے پھولوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا، جہاں سویرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہزین کے کمرے میں قدم رکھتے ہی سویرا نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور شاہزین کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور جیت کا نشہ صاف جھلک رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے شاہزین؟ سویرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا۔ مجھ میں طاقت ہے تو میں تم سے تمہاری محبت چھین کر دکھاؤں۔ دیکھ لو، میں جیت گئی۔ آج تم میرے شوہر اور وہ سمن، وہ بیکار لڑکی کرنے میں بیٹھ کر رو رہی ہے کونے میں۔ شاہزین نے اسے سر سے پیر تک نہایت سرد اور نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سویرا کے لیے ذرا بھی ہمدردی یا کشش نہیں تھی۔ تم ایک پاگل عورت ہو سویرا۔ شاہزین کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور تلخ تھا۔ اور یاد رکھنا، تم یہ کھیل جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار چکی ہو۔ سویرا کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے نکاح کر چکی ہوں اور اب تم میرے ہو۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہونے سے دل نہیں بدلا کرتے۔ شاہزین نے سویرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے مکر و فریب اور جھوٹ سے رشتہ حاصل کیا، تو سن لو، میں تمہیں کبھی بیوی کا حق نہیں دوں گا۔ تم اس کمرے میں شاہزین کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں کا نشان بن کر رہو گی۔ یہ کہہ کر شاہزین مرا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہزین رکو! سویرا چیخی، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شاہزین نے اسے چیخو پکار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، دروازہ کھولا اور باہر نکل کر درام سے بند کر دیا۔ سویرا اندر کمرے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی اور غصے سے چیخنے لگی، مگر شاہزین کے قدم نہیں رکے۔ شاہزین حویلی کے پچھلے حصے میں واقع سمن کے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ نیم بند تھا۔ شاہزین نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو کر اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے کے کونوں میں بستر پر سمن اپنے لال جوڑے میں لپٹی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود سسکیوں سے کانپ رہا تھا۔ شاہزین کا دل اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا بستر کے قریب آیا اور سمن کے پاس بیٹھ گیا۔ سمن! شاہزین نے نرمی سے پکارا۔ سمن نے ڈر کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل اور سوجی ہوئی تھی۔ شاہزین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی اور اس کا درد مزید بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں شاہزین؟ سمن کی آواز رو رو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو سویرا کے پاس ہونا چاہیے، اب وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ شاہزین نے بنا کچھ کہے سمن کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری بات غور سے سنو سمن۔ شاہزین نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے انتہائی شدت سے کہا، خدا کی قسم، میرا دل، میری محبت، میرا وجود اور میرا حق صرف اور صرف تمہارا ہے۔ سویرا نے جو سازش رچی ہے نا، اس سے پورا گھر میرے خلاف کر دیا اور مجھے
اس نکاح پر مجبور کیا، لیکن وہ کبھی شاہزین کے دل پر داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر شاہزین، سب لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، سمن نے سسکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آپ پر اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ کو سویرا سے شادی کرنی پڑی، میں کیسے برداشت کروں؟ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ شاہزین نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مانتی ہو کہ تمہارا شاہزین ایسا کوئی گناہ نہیں کر سکتا؟ سمن نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے آپ پر اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے، آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے سویرا نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ سنتے شاہزین کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، اسے سمن کو سینے سے لگا لیا۔ سمن نے بھی اپنی تمام تر تکلیف شاہزین کی آغوش میں چھپا دی۔ شاہزین نے اس کے ماتھے، اس کے گالوں اور اس کے بکھرے ہوئے آنسوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ آج کی رات اور آنے والی ہر رات صرف تمہاری ہے سمن، شاہزین نے اس کے کان میں کہا۔ دنیا کا جو سوچنا ہے سوچنے دو، لیکن میں تمہیں اپنے دل سے کبھی الگ نہیں ہونے دوں گا۔ رات کا سناٹا ان دونوں کی سچی محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ شاہزین نے سویرا کے ساتھ ہوئی زبردستی کے نکاح کے تمام غم کو سمن کی قربت میں بھلا دیا۔ اسے سمن پر اپنی تمام تر شدتیں، چاہتیں اور محبتیں نچھاور کر دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں گم ہو کر دنیا کی تمام دکھوں سے بے نیاز ہو گئے۔ شاہزین نے ثابت کر دیا کہ جسمانی نکاح چاہے کسی سے بھی ہو جائے، لیکن روح کا نکاح صرف اسی سے رہتا ہے جس سے سچی محبت کی جائے۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور صبح کی پہلی کرن نے حویلی کی کھڑکیوں سے اندر جھانکنا شروع کیا۔ سمن شاہزین کے سینے پر سر رکھے سکون کی نیند سو رہی تھی اور شاہزین پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا کہ اچانک حویلی کے سین میں شدید دھماکے کے ساتھ برتن گرنے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ شاہزین، باہر نکلو، کہاں ہو تم؟ سویرا کی چیخوں پکار نے پوری حویلی کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ وہ رات بھر کمرے میں تنہا جلتی رہی اور صبح ہوتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ حویلی کے ہال میں چیزیں توڑ رہی تھی اور تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے ہنگامہ کھڑا کر رہی تھی۔ شاہزین نے سمین کی نرمی سے خود سے اسے الگ کیا اور اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے چہرے پر ایک سخت اور بے خوف تاثر لیے اسے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ علی اکبر اور علی اصغر کا خاندان ایک ہی بڑی حویلی میں مشترکہ نظام کے تحت رہتا تھا۔ علی اکبر کا بیٹا شاہزین، جو اپنے سنجیدہ مزاج اور باصول طبیعت کی وجہ سے پورے خاندان سے الگ پہچانا چاہتا تھا، بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ علی اصغر کی بیٹی سویریا نے اپنے تیز ترار رویے، غرور اور خوبصورتی کے جام میں مبتلا تھی۔ وہ بچپن سے ہی قرض کی بیٹھی تھی اور حویلی کا اکلوتا شہزادہ یعنی کہ شاہزین، یہ صرف اس کا حق تھا۔ انہی دنوں گاؤں میں شاہزین کی پھوپھی کی بیٹی سمن شہر کے ایک بڑے کالج میں داخلہ لیے پڑھنے کے لیے حویلی آئی۔ سمن ایک نہایت سادہ، شرمیلی اور بے حد خوبصورت صابر لڑکی تھی۔ اس کی آمد حویلی میں ایک نیا موڑ لے آئی تھی۔ شاہزین اور سویرا کی ماؤں نے شروعات میں تو سمن کا ظاہری استقبال کیا، لیکن جلدی انہوں نے سمن کی سادگی اور صابرانہ طبیعت کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ سمن کے ہاتھ میں بے پناہ ذائقہ تھا، وہ جو بھی کھانا بناتی اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا۔ دونوں مامیوں نے آہستہ آہستہ گھر کی باورچی کو ہٹا کر کچن کی تمام ذمہ داری سمن کے نازک کندھوں پر ڈال دی۔ وہ سمن سے گھر کی ملازمہ کی طرح کام کرواتی اور سمن بھی بغیر کسی شکایت کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے خاموشی سے کام کرتی رہتی۔ سمن، ذرا جلدی سے سب کے لیے شام کی چائے بنا دو اور ساتھ ہی میں وہ نمکین بسکٹ بھی بیک کر دینا۔ ممانی نے صحن میں بیٹھ کر حکم دیا۔ جی ممانی جان، میں بس ابھی لاتی ہوں، سمن نے نرمی سے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی کالج کی کتابوں کو سائڈ پر رکھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سویرا ڈیزائنر سوٹ پہن کر اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے پاس سے گزری اور سمن کو حقارت سے دیکھتے بولی، وہ بی سمن، کالج کا ڈرامہ کرنے آئی تھی یا یہاں باورچی خانہ سمجھانے؟ ویسے اچھا ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں اچھے کھانے مل جاتے ہیں، گاؤں کی لڑکیوں ویسے بھی کچن میں ہونا ہی چاہیے۔ سمن نے سویرا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی۔ اسی وقت شاہزین ڈرائنگ روم سے نکل کر صحن میں آیا۔ اسے سویرا کا رویہ اور سمن کی خاموشی دونوں کو نوٹ کیا۔ شاہزین گزشتہ چند مہینوں سے سمن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روز صبح سویرے اٹھ کر اپنے کالج کی تیاری کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا ناشتہ بناتی، شام کو کچن کے چولہے کے پاس بیٹھ کر اپنی کتابیں کھولے پڑھتی اور کبھی کسی سے شکایت نہ کرتی۔ شاہزین کا دل سمن کی سادگی اور معصومیت اور برداشت پر ہار چکا تھا۔ وہ روز بروز سمن کی اچھائیوں کا قائل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ سویرا کی تیز تراری اور لالچ
اسے اور زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ ایک دن شاہزن کچن کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ سمن گرم چولہے کے سامنے کھڑی کھانا پکا رہی ہے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی کتابیں کھلی پڑی تھی۔ شاہزن کچن میں داخل ہوا اور بولا، سمن، تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ تم یہاں پڑھنے آئی ہو، پوری حویلی کا کام کرنے نہیں۔ سمن نے اچانک شاہزن کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا کر بولی، کوئی بات نہیں شاہزن، کام کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اور مامی جان کہتی ہیں کہ گھر کا کام سیکھنا بھی ضروری ہے۔ میں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی کر رہی تھی۔ شاہزن نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم واقعی بہت الگ ہو سمن، اتنی سادگی آج کل کی لڑکیوں میں کہاں ہوتی ہے۔ سمن شاہزن کی بات سن کر شرما گئی اور خاموشی سے سالن کا چمچ ہلانے لگی۔ اس دن شاہزن نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی کا سفر صرف سمن کو ہی بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں گھر کے تمام بڑے جمع تھے اور شاہزن کی شادی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سویرا کی ماں نے مسکراتے علی اکبر سے کہا، علی اکبر بھائی، ماشاءاللہ شاہزن اب بزنس میں بھی سیٹ ہو گیا، کیوں نہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ سویرا بھی اب بڑی ہو گئی ہے، دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ بہت جچے گی۔ سویرا جو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور اور خوشی کی چمک آ گئی۔ اس کے نزدیک تو یہ بات پہلے سے طے تھی، لیکن تبھی شاہزن ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا، معاف کیجیے گا چچی جان، لیکن میں سویرا سے شادی نہیں کر سکتا۔ ڈرائنگ روم میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ سویرا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ علی اکبر نے حیرت سے پوچھا، شاہزن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر تمہاری نظر میں کون ہے؟ شاہزن نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ابا جی، میں سمن کو پسند کرتا ہوں، وہ ایک نیک، سادہ اور بااخلاق لڑکی ہے۔ اگر میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو وہ صرف سمن سے ہی ہوگی۔ یہ سنتے ہی حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ سویرا کی ماں کے چہرے پر غصہ آ گیا، لیکن شاہزن علی اکبر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ جب علی اکبر نے دیکھا کہ شاہزن اپنے فیصلے پر قائم ہے تو انہوں نے شاہزن کی پسند کا احترام کرتے سمن سے اس کا رشتہ طے کر دیا، اور چند ہی دنوں میں سادگی سے اس کے ساتھ شاہزن اور سمن کا نکاح پڑھا دیا گیا، جبکہ رخصتی سمن کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے پائی۔ نکاح کی رسمیں ختم ہوئی، تمام گھر والے صحن میں موجود تھے۔ سویرا یہ ذلت اور شکست برداشت نہ کر سکی، اس کا وجود جلن کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ شاہزن جب اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا تو اچانک سویرا زبردستی اندر گھس آئی۔ اس کے چہرے پر جنون اور غصے کے تاثرات تھے۔ سویرا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر جاؤ، شاہزن نے ناگواری سے کہا۔ سویرا نے شاہزن کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ آگے بڑھی اور زبردستی شاہزن کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، شاہزن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، شاہزن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بولو نا، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ تم سے محبت کرتی ہوں شاہزن، بچپن سے میں نے صرف تمہیں اپنا شوہر مانا ہے، تم اس معمولی اور دیہاتی سمن کو مجھ پر کیسے ترجیح دے سکتے ہو؟ شاہزن کو سویرا کی اس حرکت پر شدید گھن آئی۔ اس نے سختی سے سویرا کو دونوں شانوں کو پکڑا اور اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ سویرا، اپنی حد میں رہو۔ شاہزن کی آواز غصے سے گونج اٹھی۔ شاہزن میری بات سنو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اس نکاح کو توڑ دو۔ سویرا نے دوبارہ اس کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن شاہزن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس بس سویرا، اب ایک لفظ اور نہیں۔ شاہزن کی آنکھوں میں شدید سرد میری اور غصہ تھا۔ میں سمن سے نکاح کر چکا ہوں، وہ میری منقوہ ہے، میری عزت ہے اور میرے دل کی پسند ہے، اور تم میرے لیے صرف اور صرف ایک کزن ہو۔ تمہیں تو کوئی سلیقہ اور نہ ہی کوئی دوسروں کا احترام ہے۔ تمہارے اس رویے نے مجھے تم سے مزید دور کر دیا۔ سویرا نے صدمے سے شاہزن کو دیکھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی حد یاد رکھو اور مجھ سے اور سمن سے دور رہو، اور میرا اور تمہارا کوئی ایسا تعلق نہیں جہاں تم بلا اجازت میرے کمرے میں آ سکو۔ نکلو یہاں سے۔ شاہزن نے سختی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے اپنے آنسو پونچھے اور شاہزن کو نفرت انگیز نگاہوں سے گھورا۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے شاہزن۔ سویرا نے دانت پیس کر کہا، تم سمن کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے، میں تم دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر سویرا پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہزن نے گہرا سانس لیا اور دروازہ لاک کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سویرا کا یہ جنون آنے والے دنوں میں خوفناک سازش کا روپ دھارنے والا ہے۔ سمن اور شاہزن کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کا دن بالکل سر پر آن پہنچا تھا۔ تمام حویلی میں خوشیوں کا ماحول تھا،
लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक तारीख कोने में सवेरा के दिल में हसद के आग शोले भड़का रही थी। वो शाहजहां की तरफ से ठुकराए जाने की जिल्लत एक पल के लिए भी फरामोश नहीं कर सकी थी। शाहजहां और समन की रुखसती में सिर्फ एक दिन बाकी था, और यही वो दिन था जब सवेरा ने अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के बजाय शाहजहां को बर्बाद करने की खौफनाक साजिश तैयार की। रात के 2 बज रहे थे। हवेली की तमाम लाइट्स बुझ चुकी थी और हर तरफ गहमा गहमी और सन्नाटा था। शाहजहां अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसके सराहने रखा मोबाइल फोन तेजी से बजने लगा। शाहजहां ने नींद में हाथ मारकर फोन उठाया। स्क्रीन पर सवेरा का नाम चमक रहा था। उसने माथे पर बल डालते हुए कॉल रिसीव की। सवेरा, इतनी रात के फोन क्यों कर रही हो? शाहजहां ने नींद में डूबी बेजार आवाज में पूछा। दूसरी तरफ सवेरा की इंतहाई घबराई हुई आपती आवाज आई। शाहजहां, शाहजहां मेरी मदद करो। मेरी बालकनी में कोई है, कोई चोर या डाकू हवेली में घुस आया है। मुझे डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा। शाहजहां के दिमाग में नींद का खुमार फौरन उठ गया। गैरत का एहसास उसके अंदर जाग उठा। वो बगैर कुछ सोच समझे हालात की संगीनी को देखते बिस्तर से उठा और सवेरा के कमरे की तरफ भागा। सवेरा के कमरे का दरवाजा नीम बंद था। शाहजहां जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और घबरा कर बालकनी की तरफ देखा। सवेरा, कहाँ है चोट? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जब शाहजहां ने मुड़कर देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। सवेरा बालकनी के पास डरी हुई नहीं बल्कि इत्मीनान से खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब पुरस्कार और फातिहाना मुस्कुराहट थी। सवेरा, शाहजहां ने उलझन से उसे देखा। चोर कहाँ है? तुम इतने सुकून से क्यों खड़ी हो? सवेरा ने शाहजहां की बात का कोई जवाब न दिया। उसकी आंखों में जुनून की एक लहर दौड़ गई। शाहजहां कुछ समझने या मुड़कर कमरे से बाहर जाने से पहले भी सवेरा ने अपने हाथों से अपनी कमीज के बाजू को सख्ती से पकड़कर एक ही झटके में फाड़ दिया। उसने अपना दुपट्टा जमीन पर फेंका और अपने बाल तेजी से बिखेरे और फिर हवेली के सुनाटे को चीरती खौलनाक चीख मारी। बचाओ, कोई है? अब्बा जान, ताया जान, बचाओ मुझे। सवेरा जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोते हुए चीखने लगी। शाहजहां, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए दूर हटो मुझसे। शाहजहां का दिमाग सुन हो गया। वो सदमे से वही जामित रह गया। सवेरा, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? शाहजहां ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सवेरा के दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर पूरी हवेली में भगदड़ मच गई। चंद ही सेकंड्स में अली असगर, उनकी बेगमात और बच्चे समेत सब खौफजदा से समन के कमरे के बाहर जमा हो गए। जब उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो सबके कदम वहीं रुक गए। सवेरा ने जमीन पर बिखरे बाल, फटे फटे कपड़े और सिसकियों के दरमियान बड़ी हम पड़ी हुई थी, जबकि शाहजहां उसके पास खड़ा था। सवेरा, क्या हुआ मेरी बच्ची? सवेरा की मां तड़प कर अंदर भागी और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। सवेरा ने सिसकियां लेते अपनी उंगली शाहजहां की तरफ बढ़ाई और जारों की तरह रोते इल्जाम लगाया। मम्मी, बजान, शाहजहां, शाहजहां जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा है। इसने मेरे साथ इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने इनकार किया और शोर मचाया तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। शाहजहां पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसका जिस्म गुस्से और सदमे से कांपने लगा। ये सफेद झूठ है। शाहजहां शिद्दत से चीख उठा। अब्बा जान, चाचा जान, ये औरत झूठ बोल रही है। इसने खुद मुझे फोन करके बुलाया था कि बालकनी में चोर है और इसकी मैं मदद के लिए आया था, लेकिन इसने खुद अपने कपड़े फाड़ कर ये ड्रामा रचाया। सवेरा ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। देखो अब्बा, ये अपनी अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्या कोई लड़की अपनी इज्जत का यूं तमाशा खुद बनाएगी? क्या कोई अपने खुद कपड़े खुद फाड़ेगी? अली असगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर शाहजहां का गिरबान पकड़ लिया। बेगैरत, हमने तुम्हें बेटा समझा और तुमने हमारी ही बेटी पर नीयत खराब कर दी। अपनी कजन के साथ ये नापाक हरकत करने की जुर्रत कैसे की तूने? चाचा जान, खुदा का खौफ करे, मैं सच कह रहा हूँ। शाहजहां ने सफाई देनी चाहिए, फिर उसने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बा जान, आपने मुझे आप मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसा गुनाह सोच भी नहीं सकता। समन से पूछे, मैं सिर्फ समन से मोहब्बत करता हूँ। हवेली के एक कोने में खड़ी समन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखें खामोशी से आंसू बहने लगे। उसे अपने शाहजहां पर पूरा यकीन था कि वो ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन इस वक्त माहौल इतना कशीदा था कि समन की सच्चाई देखने वाला कोई नहीं था। बंद करो अपनी बकवास शाहजहां। अली अकबर की आवाज में गुस्सा और शदीद शर्मिंदगी थी। तुम इस वक्त उस लड़की में कमरे में क्या कर रहे थे? आधी रात को तुम यहाँ क्यों आए? मैं सिर्फ उसकी मदद के लिए। बंद करो झूठ बोलना।
सवेरा की माँ चीखी, अली अकबर भाई, अब हवेली की इज्जत नीलाम हो गई है। अगर ये बात बाहर निकली तो हम बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? इस बेहया लड़के ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। अब इसका एक ही हल है। अली अकबर ने गहरा सांस लिया। उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। अली असगर, तुम सही कह रहे हो। खानदान की इज्जत बचाने के लिए उस गनाह का कुफारा अदा करने के लिए मैं फैसला कर चुका हूँ। शाहजहां ने भी उसी से माँ को देखा। बाजान नहीं, समन की रुखसती नहीं होगी। अली अकबर ने सख्त और हतमई फैसला सुनाया। आज शाहजहां का निकाह सवेरा से होगा। यही इस हवेली की इज्जत बचाने का वाहिद तरीका है। शाहजहां की सजा भी। नहीं अब्बाजान, मैं सवेरा से कभी निकाह नहीं करूंगा, ये साजिश है। शाहजहां चीखता रहा, लेकिन अली अकबर ने उसकी एक न सुनी। उसे कमरे में बंद करने का हुक्म दे दिया। समन चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोती रही, जबकि सवेरा अपनी माँ के सीने में लगी रोते हुए अपना मुंह छुपाकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। और यूं चंद घंटों के अंदर समन की रुखसती का दिन सवेरा के निकाह में बदल गया। सूरज की पहली किरण हवेली के सहन में पड़ चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल बोझल और तपता हुआ था। रात भर सवेरा की चीखों पुकार, बर्तन टूटने का शोर और फिर शाहजहां का समन के कमरे में चले जाना, इन तमाम बातों ने सुबह का आगाज को इंतहाई कशीदा कर दिया था। सवेरा सूजी हुई सुर्ख आंखों और गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपने कमरे से बाहर निकली। उसका दिल जलकर कोला हो रहा था। रात भर की तन्हाई और शहज़ैन की शदीद बेरुखी ने उसके गुरूर पर कारी जरब लगाई थी। सेन में आकर उसने देखा कि समन खामोशी से किचन में बर्तन समेट रही है और शाहजहां के लिए चाय तैयार कर रही थी। समन के चेहरे पर गम की हल्की सी परछाई तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। शाहजहां ने रात को उसके वजूद पर उसके मान को अपनी मोहब्बत से भर दिया था। समन को यूं सुकून से देखकर सवेरा का जवाब दे गया। वो तेज कदम उठाते किचन में दाखिल हुई और चूल्हे पर रखे सॉस पैन को सख्ती से पड़े धकेला, जैसे चाय का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। इतनी बेहया औरत हो तुम! सवेरा ने चंगारते हुए समन का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। जरा शर्म नहीं आती ना तुम्हें? रुखती तुम्हारी मनसूख हो चुकी है। शाहजहां का निकाह मुझसे हुआ है, वो अब मेरा शौहर है। फिर भी फिर भी तुमने रात भर से अपने कमरे में रोके रखा। तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम किसी की चीज पर डाका डाल रही हो? समन ने अपना बाजू नहायत जब्त के साथ सवेरा की गिरफ्त से छुड़ाया। उसने अपनी नजरें उठाई और सवेरा की जलती हुई आंखों में आंखें डालकर देखा। समन का अंदाज ना डरा हुआ था और ना ही माजरत खां। शाहजहां कोई चीज नहीं, चीज की आवाज धीमी लेकिन बेहद मजबूत थी। कागज के एक टुकड़े पर जबरदस्ती दस्तखत करवाने से दिल के रिश्ते नहीं बदलते। तुमने जो खेल खेला है वो सबके सामने आकर रहेगा। लेकिन शाहजहां का दिल सिर्फ मेरा है और मुझे अपने शौहर पर अपने आप से ज्यादा यकीन है। शौहर? सवेरा ने खौफनाक कहका लगाया। किस बात का शौहर? हवेली का हर फर्द जानता है कि शाहजहां एक गुनाहगार है। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम इस घर में एक नाकाम और ठुकराई हुई औरत से ज्यादा कुछ नहीं। अगर शाहजहां गुनाहगार होते तो तुम रात भर उसके बगैर तनहा उस कमरे में चीख ना रही होती सवेरा। समन ने एक गहरा सांस लिया और सालन की देचकी का ढक्कन ढांपते सुकून से कहा, जो सच्चा होता है उसे अपनी गवाह सफाई में नहीं देनी पड़ती। मुझे शाहजहां की पाकीज़गी का पता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त है। सवेरा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से से अपने दांत पीस कर रखी। थोड़ी देर बाद हवेली का बड़ा ड्राइंग रूम सज चुका था, लेकिन वहां नाश्ते की कोई रौनक नहीं थी। अली अकबर, अली असगर और दोनों खवातीन खामोशी से बैठे थे। माहौल इतना सन्नाटा था कि बर्तनों के टकराने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। शाहजहां अपने कमरे से निकलकर नीचे आया। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस था, लेकिन उसके चेहरे पर थकन और संजीदगी थी। उसे सीधा ड्राइंग रूम का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान, शाहजहां ने अली अकबर की तरफ देखते हुए कहा। अली अकबर ने अपने बेटे की आवाज सुनी, अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उन्होंने ना सलाम का जवाब दिया और ना ही शाहजहां की तरफ देखा। शाहजहां का दिल अंदर से कट कर रह गया, लेकिन उसने हौसला ना हारते अली असगर की तरफ रुक किया। चाचा जान, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अली असगर ने हाथ में पकड़ा चाय का कप जोर से टेबल पर रखा। तुमसे कौन बात करना चाहता है शाहजहां? हमें तो तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे बैठते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और अब ऐसे घूम रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवेरा की माँ ने तंजी और मुस्कुराहट के साथ शाहजहां को देखा। बड़ा पार सा बनता था
कहता था मैं सिर्फ समन से शादी करूंगा। समन बहुत सादा है। अब देखो, रात के अंधेरे में अपनी ही कजन के कमरे में घुस गया। अगर वक्त पर शोर न मचता तो न जाने क्या हो जाता। अच्छे भले घर का नाम डबो कर रख दिया तुमने। शासन के कदम जम गए। उसने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बींच लिया। उसका दिल चाहा कि वो दोबारा सबको बताए कि सवेरा ने क्या ड्रामा रचाया, लेकिन वो जानता था कि ताज्जुब और गुस्से की पट्टी उन सब की आंखों में बन चुकी है। कोई भी सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आप लोग जो सोचना चाहते हैं सोचे, शासन ने भारी आवाज में कहा। खुदा जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, और एक दिन ये हकीकत आप सबके सामने आएगी। बस करो अपनी सफाइयाँ। अली अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, अब इस हवेली में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अगर हमने तुम्हारा निकाह सवेरा से करवाया तो सिर्फ सिर्फ खानदान का दाग धोने के लिए, वरना तुम इस काबिल भी नहीं हो कि इस घर में कदम रख सको। चुपचाप अपने कमरे में रहो और काम पर जाओ। मैं अपना मुंह मत दिखाओ। घर वालों का ये रवैया शासन के लिए किसी अजियत से कम नहीं था। उसका बाप जिसने उससे हमेशा सर आंखों पर बिठाया था, आज उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। इसी अजना में सवेरा चाय की केतली उठाई पड़ी, गरूर के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो सबके सामने शाहजहान की बकायदा बीवी बनकर उस पर अपना हक जताना चाहती थी। शाहजहान आओ, नाश्ता कर लो। सवेरा ने अपनी आवाज में बनावटी लचक पैदा करते हुए शाहजहान का रास्ता रोका और उसके लिए चाय का कप आगे किया। तुम्हारी पसंद की चाय बनाई है मैंने। शाहजहान ने सवेरा की तरफ देखा भी नहीं। उसकी निगाहें यूं गुजर गई जैसे सवेरा की जगह कोई खाली दीवार को। शाहजहान ने एक कदम साइड पर लिया और सवेरा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते आगे बढ़ गया। शाहजहान। सवेरा का चेहरा फक हो गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर शाहजहान को कलाई पकड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे इस तरह मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, घर की बहू हूँ। शाहजहान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी आंखों में सवेरा के लिए इतनी नफरत, हकारत थी कि सवेरा को कदम खुद ब खुद उसके पीछे हट गया। शाहजहान की आवाज इतनी पस्त और तलख थी कि सिर्फ सवेरा ही सुन सकी। तुम सिर्फ एक फरेब हो सवेरा, एक ऐसा जहर जिसे मैं मजबूरी में कबूल कर लिया। तुम चाहे जितनी भी ड्रामे कर लो, लेकिन शाहजहान की नजर में तुम एक मिट्टी के जर्रे से भी ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम कभी मेरी तवज्जो हासिल नहीं कर सकोगी, कभी नहीं। ये कहकर शाहजहान डाइनिंग रूम से निकल गए और सीधा किचन की तरफ मुड़ गए, जहां समन खड़ी थी। हवेली के तमाम घर वालों और सवेरा के सामने शाहजहान ने किचन में जाकर समन के सामने हाथ जोड़े। समन, मुझे थोड़ी सी चाय मिल जाएगी। शाहजहान का लहजा समन के लिए बेहद नरम और प्यार भरा था। समन ने मुस्कुराकर चाय का गर्म कप शाहजहान की तरफ बढ़ाया। मैंने आपके लिए पहले ही बना कर रखी थी शाहजहान। शाहजहान ने कप थामा, समन के सर पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना समन, मैं शाम को जल्द वापस आऊंगा। सवेरा ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर सुलग उठी। उसका पूरा वजूद जलन की आग में झुलस रहा था। उसने शाहजहान को हासिल करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। हवेली में हंगामा खड़ा किया था। समन से उसका हक छीना, लेकिन फिर भी शाहजहान की नजरों में सिर्फ समन के लिए मोहब्बत और एहतराम था, जबकि सवेरा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुत्कार और शर्त मेहरी थी। सवेरा को अंदाजा होने लगा कि वो जंग जीत कर भी हकीकत में हार चुकी है, लेकिन उसका गुरूर उसे अभी भी तस्लीम करने से रोक रहा था। दिन पर लगाकर गुजर रहे थे, लेकिन हवेली का माहौल दिन ब दिन मजीद जहरीला और नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। शाहजहान का रोज सुबह काम पर जाना और शाम को वापस आना एक अजियतनाक अमल बन चुका था। घर के किसी फर्द के चेहरे पर उसके लिए शफकत या नरमी का कोई अक्स नहीं था। अली अकबर और अली असगर ने उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, जबकि दोनों ममानियां बात बात पर समन को ताने देती और शाहजहान को गुनहगार ठहराती। सबसे ज्यादा अजियतनाक रवैया सवेरा का था, जिसका हसद और जुनून रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। वो हवेली में सबको शाहजहान की बीवी साबित करने का कोई मौका न छोड़ाती, लेकिन शाहजहान की तरफ से मिलने वाली मुसलसल दुत्कार ने उसे एक ऐसी औरत बना दिया था जो हर वक्त तनकीद और तंज के तीर चलाती रहती। एक शाम शाहजहान जैसे ही थका हारा घर लौटा तो उसे सेन से सोयरा की ऊंची और तलख आवाज सुनाई दी। वो समन पर चीख रही थी और उसके हाथ में किचन के बर्तन छीन कर नीचे फेंक रही थी। तुम यहाँ किस हैसियत से नवाबजादी बनी बैठी हो? सवेरा की आवाज में जलन और नफरत की इंतहा थी। तुम्हारी तो रुखसती भी नहीं हुई। तुम इस घर की बहू नहीं, शासन का निकाह मुझसे हुआ है। इस हवेली की असल मलका मैं हूँ। तुम तो यहाँ सिर्फ पप्पू की वो गरीब बेटी हो जिसे हमने दर्स खाकर पढ़ने के लिए जगह दी थी।
अब भी वक्त है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस अपने गांव चले जाओ। समन खामोशी से जमीन पर गिरे बर्तन उठा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सवेरा की बदजुबानी का कोई जवाब न दिया। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो हवेली में मजीद हंगामा खड़ा होगा और शाहजहां का दिल मजीद दुखेगा। शाहजहां ने यह तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने सवेरा से बहस करने के बजाय अपने जज्बात पर काबू रखा। वो सीधा समन के पास पहुंचा और उसका हाथ थामा और उसे बर्तन उठाने से रोकते हुए ऊपर उठाया। बस समन, बहुत हो गया। शाहजहां की आवाज में एक ऐसा हतमी फैसला था जिससे सवेरा के कदम रोक लिए। और समन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शाहजहां, आप? सवेरा ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। शाहजहां ने सवेरा की तरफ एक सर्द और नफरत अंगेज निगाह डाली और फिर समन का हाथ थामे हुए उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सवेरा पीछे से चीखी, शाहजहां, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? शाहजहां ने मुड़कर बिना देखा। कमरे में दाखिल होकर शाहजहां ने समन को दोनों शानों से पकड़ा। उसका दिल समन की बेबसी देखकर तड़प रहा था। समन, अब हम इस हवेली से 1 मिनट में नहीं रहेंगे। शाहजहां ने समन की आंखों में पाकीज़गी और मोहब्बत को देखते हुए कहा। समन ने हैरत से पूछा, क्या मतलब शाहजहां? हम कहाँ जाएंगे? ये आपका अपना घर है, आपके अब्बा जान का घर। ये घर अब घर नहीं रहा समन, एक घुटन ज़दा कैद खाना बन चुका है। शाहजहां के लहजे में दर्द था। यहाँ का हर फर्द मुझे गुनहगार समझता है और तुम्हें ताने देता है। मेरी गैरत ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बीवी, मेरी सच्ची मोहब्बत इस हवेली में रोज जलील हो। मैंने फैसला कर लिया है, हम ये शहर, ये हवेली, सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं। जमन ने चंद मुंह के लिए शाहजहां के चेहरे की संगीनी और उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत को देखा। उसे शाहजहां के हाथों पर अपने नाजुक हाथ रखे और नरमी से बोली, शाहजहां, अगर आपका फैसला यही है तो मुझे आपके साथ चलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं। मुझे बड़ी हवेली या आसाइशों की कोई तलब नहीं है। मेरे लिए सिर्फ आपका साथ और आपका मान काफी है। आप जहां भी ले जाएंगे मैं मुस्कुराकर आपके साथ चली जाऊंगी। शाहजहां ने समन का माथा चूमा और जल्दी से दोनों का जरूरी सामान और कपड़े चंद बैग में पैक करने लगा। थोड़ी देर में शाहजहां हाथ में ट्रैवल बैग्स उठाए। समन का हाथ मजबूती से थामे नीचे हॉल में उतरा। सैन में अली अकबर, अली असगर और दोनों मामियां बैठी थी, जबकि सवेरा कोने में खड़ी गुस्से से पैर पटक रही थी। जब उन्होंने शाहजहां और समन के बैग्स के साथ बाहर निकलते देखा तो तमाम घर वाले हैरान रह गए। शाहजहां, ये क्या ड्रामा है? अली अकबर ने खड़े होकर सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? शाहजहां के कदम रुके। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ बाजान। शाहजहां ने बिना किसी खौफ के इंतहाई बावकार अंदाज में कहा। क्या? अली असगर आगे बढ़े। तुम हवेली छोड़कर जा रहे हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? खानदान की इतनी बदनामी करवाने के बाद अब तुम भागने का प्रोग्राम बना रहे हो? बाग मैं नहीं रहा चाचा जान। शाहजहां ने तल्खी से कहा, भागते वो हैं जिन्होंने गुनाह किया हो। मैं बेगुनाह हूं और मेरा खुदा जानता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन सगों ने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने 1 मिनट भी एक चालाक औरत के झूठ पर यकीन कर लिया और मुझे गुनहगार ठहरा दिया। मैं इस हवेली में आपकी नफरत और जहरीले माहौल का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। सवेरा ये सुनकर तेजी से आगे बढ़ी। उसे शाहजहां के सामने आकर उसका रास्ता रोका। शाहजहां, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सवेरा का चेहरा खौफ और हैरत के मारे पीला पड़ चुका था। तुम समन को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा हक मार रहे हो। मैं तुम्हारी मनकुआ हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे छोड़कर उसके साथ नहीं जा सकते। शाहजहां ने सवेरा को देखा। उसकी आंखों में गजबनाक सर्द महरी थी। शाहजहां ने तंजिया अंदाज में कहा, सवेरा, तुमने जो निकाह झूठ, साजिश और मकर से किया था ना, मैंने उसी दिन कहा था कि तुमने सिर्फ कागजात का एक टुकड़ा हासिल किया है, शाहजहां को नहीं। मगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ शाहजहां, तुम मेरे बगैर कैसे जा सकते हो? सवेरा ने चीखते हुए शाहजहां का बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर शाहजहां ने झटके से अपना बाजू पीछे कर लिया। सुन लो सवेरा, शाहजहां की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुमने सोचा था कि तुम समन को मुझसे दूर कर दोगी और मैं मजबूरी में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी वो भूल आज खत्म होगी। मैं समन को लेकर जा रहा हूँ और अपनी जिंदगी उसके साथ एक नए सिरे से शुरू करूंगा। और तुम इस हवेली में अपनी इस साजिश के साथ तन्हा सड़ती रहो।
तुम्हें ना मेरी मोहब्बत मिलेगी, ना मेरा वक्त और ना ही बीवी का मुकाम। सवेरा सदमे से वहीं साकत रह गई। उसके पाँव पाँव तले से जमीन निकल गई। शाहजहान ने एक नजर अपने बाप और बाकी घर वालों पर डाली। खुदाफिज अब्बाजान, उम्मीद है एक दिन आपको सवेरा का सच और मेरी बेगुनाही नजर आ जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शाहजहान ने समन की उंगलियां अपनी उंगलियों में जकड़ी और उसका हाथ मजबूती से थामा और हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया। समन ने एक बार मुड़कर हवेली की तरफ देखा, फिर शाहजहान के साथ अपने कदम आगे बढ़ा दिए। पीछे सवेरा की चीखने और रोने की आवाजें गूंज रही थी। शाहजहान, शाहजहान वापस आओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सवेरा हाल के फर्श पर गिरकर चीखती और रोती रही, लेकिन शाहजहान ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अली अकबर और अली असगर खामोश खड़े हवेली का खाली दरवाजा देखते रह गए। सवेरा के पास सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं बचा था, ना शाहजहान और ना ही उसकी मोहब्बत। एक नए शहर में शुरुआत करना कभी आसान नहीं होता, खासतौर पर जब पुश्त पर अपनों के ताने और गुनाह का दाग और खाली हाथ। शाहजहान और समन ने शहर के खामोश इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। ना वह वहाँ हवेली जैसे कमरे थे और ना ही आसाइशें, मगर वहाँ एक चीज वाफर मकदार में मौजूद थी, सुकून और सच्ची मोहब्बत। शाहजहान ने दिन रात एक कर दिया। वो सवेरा सुबह सवेरे घर से निकलता और नए शहर में बिजनेस क्लाइंट से मिलता, मार्केट की खामियों को समझता और रात को थका हारा वापस लौटता। एक शाम शाहजहान फाइलें खोले छोटे से ड्राइंग रूम की मेज पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकन के गहरे असरात और माथे पर फिक्र की लकीरें। समन गर्म चाय का कप और बिस्किट की प्लेट ले आई और खामोशी से शाहजहान के पास बैठ गई। उसे शाहजहान के शानी पर हाथ रखा। शाहजहान, आप बहुत थक गए हैं, चाय पी लें और थोड़ी देर के लिए ये फाइलें भी बंद कर दें। समन ने नहायत नरमी और मोहब्बत से कहा। शाहजहान ने गहरा सांस लिया और समन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। समन, कभी कभी लगता है कि मैं नाजायज हूँ, ये पहाड़ी मैं बहुत बड़ा कदम उठा चुका हूँ। नया शहर है, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। अगर ये नया बिजनेस ना चला तो? शाहजहान की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। समन ने प्यार से मुस्कुराकर शाहजहान की आंखों में देखा। अगर ये बिजनेस ना भी चला शाहजहान, तब भी मैं आपके साथ इस इसी तरह खड़ी रहूंगी। लेकिन मुझे अपने खुदा पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। आप एक बासूल और मेहनती इंसान हैं, और जिसकी नीयत साफ हो खुदा उसे कभी तना नहीं छोड़ता। आप बस कदम आगे बढ़ाए, मैं हर मुश्किल में आपका हौसला बनूंगी। समन के अल्फाज ने शाहजहान के अंदर रही नई रूप ढूंढती। उससे समन के हाथों को छुआ और मुस्कुरा दिया। समन का हाथ, उसका बेलूस खलूस और हर हाल में शुक्र अदा करने का जज्बा शाहजहान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दूसरी तरफ हवेली का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। शाहजहान और समन के जाने के बाद वो इमारत अब एक आलीशान कैद खाना मालूम होती थी। सवेरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हवेली के वीरान सहन को देख रही थी। वो नए कपड़े पहनती दुल्हन की तरह सजती, लेकिन उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। शाहजहान के जाने के बाद सवेरा के हाथ कुछ न आया था। घर वाले जो पहले ही शाहजहान पर गुस्सा थे, अब शाहजहान की जुदाई में अंदर ही अंदर कूद रहे थे। अली अकबर अब ज्यादातर खामोश रहते और ये अली असगर के चेहरे पर भी पछतावे के बादल रहते। सवेरा को अब हवेली में वो इज्जत या मोहब्बत नहीं मिल रही थी जिसकी वो तमन्ना करती थी। सवेरा की माँ कमरे में दाखिल हुई और सवेरा को यूं गुमसुम खड़े देखकर बोली, सवेरा, तुम अभी तक यूं ही खड़ी हो, चलो नीचे आओ, किचन का कुछ काम देख लो। सवेरा ने मुड़कर अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। मम्मी, क्या शाहजहान ने कोई फोन किया? क्या अब्बा या ताया ने उसका पता करवाया? सवेरा ने उम्मीद और बेबसी के मिले जुले लहजे में पूछा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और नागवारी से सर झुका दिया। कोई फोन नहीं आया, और ना ही अली अकबर भाई उसका नाम सुनने को तैयार है। सवेरा, तुमने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि शाहजहान को जब जबरदस्ती तुमसे निकाह करना पड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता समन को भूल कर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन देखो, वो तो उस गरीब लड़की का हाथ थाम कर हमेशा के लिए घर से चला गया और तुम्हें तनहा छोड़ गया। माँ की बात पर सवेरा के दिल पर तीर की तरह लगी। अम्मी, वो मेरा शौहर है। सवेरा चीखी, लेकिन उसकी आवाज में पुराना गरूर नहीं था। उसने मुझसे निकाह किया है। कागज के निकाह से शौहर नहीं बनते सवेरा। मामी ने कड़वा सच बोला। तुमने उसे हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना था, उसने शाहजहान को तुमसे और दूर कर दिया। अब वो अपनी दुनिया में हर तुम
इस वीरान हवेली में शाहजहां की नाम नहाद बीवी बनकर बैठी है। माँ ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई, मगर उनके अल्फाज सवेरा की जमीन पर ताज़ाने की तरह बरसने लगे। सवेरा बिस्तर पर गिरकर जारों के तार रो पड़ी। रात को सुनाटे में से अपनी ही साजिश का डरावना अक्स नजर आने लगा। उसे याद है कि किस तरह शाहजहां उसके सामने बेगुनाही की दाही देता रहा, किस तरह समन खामोशी से अपने आंसू पूछती रही। सवेरा का जमीर, जो अब तक गुरूर के नीचे दबा हुआ था, अब उसे हर पल मलामत करने लगा था। मैंने ये क्या कर दिया? सवेरा ने सिसकियों के दरमियान अपने चेहरे को हाथों में छुपाया। मैं शाहजहां को हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका घर, उसका सुकून, उसके अपनों को उससे छीन लिया। मुझे शाहजहां की मोहब्बत तो ना मिली, मगर उसकी नफरत और ये अजियतनाक तन्हाई मेरी तकदीर बन गई। पछतावे की आग ने सवेरा को अंदर से अंदर जला कर राख कर दिया था, मगर अब वो इस दायरे से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। वक्त गुजरता गया और शाहजहां की मेहनत और समन की दुआएं रंग लाना शुरू की। शाहजहां की बनाई हुई नई कंपनी ने टेक्सटाइल और बिजनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। उसका ईमानदाराना रवैया और मेहनत जल्द ही रंग लाई और शाहजहां को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कुछ ही सालों में शाहजहां का शुमार शहर के कामयाब और मोतबर बिजनेसमैनों में होने लगा। शाहजहां ने शहर के एक खूबसूरत और पुरसुकून इलाके में अपना एक नया और शानदार घर खरीद लिया। ये घर हवेली जितना बड़ा तो नहीं था, मगर इसकी हर दीवार मोहब्बत, सुकून और पाकीज़गी की गवाह थी। एक शाम शाहजहां और समन चाय की मेज पर बैठे हुए थे। सूरज गुरूब हो रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाहजहां ने समन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोला, समन, आज जब मैं अपने नए ऑफिस की इब्तिदा से वापस आ रहा था, तो सोच रहा था कि अगर तुम उस दिन मेरे साथ ना होती, अगर तुम मेरी हिम्मत ना बंधाती, तो शायद मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाता। समन ने प्यार से शाहजहां की तरफ देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। शाहजहां, मैंने तो बस आपका हाथ थामा था। मेहनत और हिम्मत तो आपको अपनी थी। खुदा ने हमें हमारे सब्र का फल दिया है, नहीं समन? शाहजहां ने गहरे जज्बे से कहा, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत हो। मैंने सफर से शुरू किया था और आज हमारे पास सब कुछ है, सबसे बढ़कर ये सुकून और तुम्हारा साथ। समन धीमे से मुस्कुरा दी। हवेली में शाम का अंधेरा फैल रहा था, मगर अंदर की घुटन उस स्याही से कहीं ज्यादा गहरी थी। शाहजहां के जाने के बाद घर की रौनक और सुकून जैसे हमेशा के लिए रुखसत हो चुका था। अली अकबर ज्यादातर खामोश ड्राइंग रूम में बैठे रहते और उनके चेहरे पर अपने इकलौते बेटे की जुदाई का गम साफ नजर आता था। अली असगर भी अब सवेरा के रक्तों से आजिज आ चुके थे। सवेरा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी छत को घूर रही थी। उसके जहन में मुसलसल शाहजहां के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि तुमने जो निकाह झूठ और साजिश से हासिल किया है, तुम इसमें सिर्फ तनहा सड़ती रहोगी। पछतावे की आग ने सवेरा की रूह को झुलसा दिया था। उसका जमीर रोज रात उसे ताज़ियाने मारता। वो शाहजहां को हासिल करने की हसरत में अपनी इज्जत, अपना वक़ार और हवेली का सुकून गंवा चुकी थी। अब ये बोझ उठाना उसके बस से बाहर हो चुका था। अचानक सवेरा अपने बिस्तर से उठी। वो नीचे हॉल की जाने पड़ गई। हॉल में सब मौजूद थे। सवेरा हॉल के दरमियान में आकर खड़ी हो गई। उसका पूरा वजूद चमक रहा था। अब्बा जान, ताया जान। सवेरा की लड़ती आवाज ने हॉल के सन्नाटे को तोड़ा। सबने गर्दनें उठाकर सवेरा को देखा। क्या हुआ सवेरा? तुम इस वक्त क्या क्या कर रही हो? उसकी अम्मा ने बेजार अंदाज में पूछा। सवेरा ने कुछ न कहा और अचानक अपने तायाजान अकबर अली के पाँव में गिर गई। हजारों किताबें पड़ी। उसकी हिचकियां बंद हो गई। तायाजान, मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं बर्बाद हो गई। मैंने आप सबको बर्बाद कर दिया। सवेरा हॉल के फर्श पर सर पटकते हुए चीखी। अली अकबर ने हैरत और तशवीश से उसे देखा। सवेरा, ये क्या बदतमीजी है? होश में हो? क्या हुआ तुम्हें? अली असगर भी आगे बढ़े। सवेरा सीधी तरह खड़े होकर बोली, क्या बात है? किस बात की माफी मांग रही हो? सवेरा ने रोते अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी था। शाहजहां बेगुनाह था ताजान। सवेरा की आवाज पूरे हॉल में धमाके की तरह गूंजी। उसका कोई कसूर नहीं था। हॉल में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों की रंगत उड़ गई कि तुम क्या बकवास कर रही हो सवेरा? उसकी माँ ने घबरा कर सवेरा का शाना हिला दिया। मैं सच कह रही हूँ अम्मी। सवेरा ने दहाड़े मार कर रोते सच उगल दिया।
इस रात शाहजहान जबरदस्ती मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने खुद शाहजहान को फोन करके झूठ बोला और ड्रामा रचाया था। वो तो सिर्फ एक कजन होने के नाते मेरी मदद के लिए दौड़ा आया। अली अकबर का चेहरा सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो अपनी जगह शशा रह गए। सवेरा ने सिसकियां देते बात जारी रखी। जब शाहजहान कमरे में आया तो उससे कुछ समझने से पहले मैंने खुद अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने बाल बिखेर लिए और शोर मचा दिया। शाहजहान ने मुझे छुआ तक नहीं था अब्बाजान। उसने तो सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं शाहजहान और समन की शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं हसद में अंधी हो चुकी थी। इसलिए मैंने ये खौफनाक साजिश रची ताकि शाहजहान को मुझसे निकाह करना पड़े। सवेरा के इन अल्फाज ने हवेली की बुनियादें हिला दी। अली अकबर के हाथ से चाय का कप छूट कर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में शदीद सदमा, गर्व और शर्मिंदगी का तूफान उमड़ आया। अली असगर ने तड़प कर अपनी बेटी के शाने से पकड़कर उसे उठाया और शदीद गुस्से में बोले, बेहया औरत, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने अपने ही खानदान के सबसे बाकिरदार बेटे पर इतना बड़ा नापाक इल्जाम लगाया। तुमने एक बेगुनाह की इज्जत का तमाशा बनाया। मुझे माफ कर दे अब्बाजान। सवेरा ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर रोती रही। पछतावे की आग मुझे रोज जला रही है। मैं शाहजहान का सामना नहीं कर सकती। मैंने एक पाक बाज औरत को गुनाह बना दिया। सवेरा की माँ ने अपने मुंह पर हाथ रखे फर्श पर बैठकर रो पड़ी। पूरी हवेली में सवेरा का सच एक खौफनाक अजाब बनकर छा गया। अली अकबर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों में पछतावे के गर्म आंसू बहने लगे। हमने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया। अली अकबर की आवाज गम से बोझल थी। हमने अपने ही जिगर के टुकड़े को जलील करते हुए घर से निकाल दिया। हमने समन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। ए खुदा, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। उसी वक्त अली अकबर ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और शाहजहान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से शाहजहान ने फोन उठाया। शाहजहान, मेरे बेटे। अली अकबर की सिसकियां फोन में गूंजी। खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार हवेली आ जाओ। हमारे बाप की इल्तिजा है बेटे। शाहजहान अपने बाप की आवाज में टूटता हुआ मान सुनकर इनकार न कर सका। चंद घंटों के अंदर शाहजहान हवेली पहुंच गया। वो अकेला आया था। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून, बावकार और संजीदा तासुरात थे जो एक सच्चे और कामयाब इंसान का खासा होता है। जब शाहजहान ने हॉल में कदम रखा तो वहां का मंजर बदल चुका था। पूरा खानदान उसके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। सवेरा ने जैसे ही शाहजहान को देखा, वो भागती हुई आई और शाहजहान के कदमों में गिर गई। शाहजहान, मुझे माफ कर दो। सवेरा ने उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने सबके सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। शाहजहान, मैं एतराफ करती हूँ कि मैंने डरामा रचाया था। मेरी तुम्हारी जिंदगी और समन का हक बर्बाद कर दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे इस पछतावे की आग से निकाल दो। शाहजहान ने एक कदम पीछे हटाया, नहायत स्तब्ध के साथ सवेरा को देखा। उसकी आंखों में सवेरा के लिए कोई गुस्सा नहीं था और ना ही इंतकाम किया, बल्कि एक बेनियाजी थी। उठो सवेरा। शाहजहान की आवाज ठंडी और संजीदा थी। सवेरा रोते हुए खड़ी हो गई। एक इंसान होने के नाते मैंने तुम्हें बहुत पहले अपने दिल से माफ कर दिया था। शाहजहान ने सवेरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने अपने दिल में किसी के लिए बोगस या कीना लेकर नहीं जीता। लेकिन शाहजहान ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे सवेरा की तरफ बढ़ा दिया। जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ, फरेब और जबरदस्ती पर रखी गई हो, वो कभी कायम नहीं रह सकता। शाहजहान का लहजा बेहद हतमी और बावकार था। ये क्या है शाहजहान? सवेरा ने कांपते हाथों से लिफाफा थामा। ये तुम्हारे लिए जबरदस्ती की कैद से आजादी का परवाना है, शाहजहान ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा। सवेरा बिनते अली असगर, मैं तुम्हें इस नापाक और जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सवेरा के हाथ से कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगरचे उसके हिस्से में तलाक का दाग आया था, लेकिन वो जानती थी कि शाहजहान का ये फैसला बिल्कुल बरहक था। वो कभी उसके लायक नहीं थी। तभी अली अकबर आगे बढ़े और शाहजहान को अपने सीने से लगाकर जारों के तारों पड़े। शाहजहान, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। अली अकबर की हिचकियां बंद हो गई। मैं एक नादान बाप साबित हुआ। मैंने एक चालाक औरत के झूठ पर यकीन करके अपने ही पाक पास बेटे को ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो शाहजहान। अली असगर भी शर्मिंदा थे। शाहजहान बेटा। अली असगर ने शाहजहान का हाथ थामा। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं। तुम समन को लेकर वापस हवेली आ जाओ। ये तुम्हारा अपना घर है। हम समन से भी माफी मांगेंगे और उसे इस हवेली के का वही मुकाम देंगे जिसकी वो हकदार है। प्लीज वापस आ जाओ बेटा। शाहजहान ने अपने बाप और चाचा के हाथों को चूमा। उनके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आ गई।
अब्बा जान, चाचा जान, शाहजहां ने इंतहाई बाखलाक अंदाज में कहा, आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। मैं आपको सच्चे दिल से माफ कर चुका हूँ। अली अकबर की आंखों में उम्मीद की शमा रोशन हुई। फिर तुम वापस आ रहे हो ना शाहजहां? शाहजहां ने प्यार से नफी में सर हिलाया। नहीं बजान, मैं उस हवेली में वापस नहीं आ सकता। क्यों बेटे? क्योंकि मेरा घर, मेरा कारोबार और मेरी दुनिया इस नए शहर में है। शाहजहां ने समन को याद करते हुए गहरे जज्बे से कहा, जिस समन को उसने हवेली में हमेशा मुलाजमा समझा और ताने दिए। उस समन ने सफर से सिफर से शुरू होने वाले समन का शाहजहां का हाथ थामा और से इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। अब मेरी मंजिल वही छोटा सा पुरसुकून घर है जहाँ समन मेरी मुंतजर है। शाहजहां ने अपने बाप का सर चूमा। मैं आपसे मिलने हवेली आता रहूंगा अब्बाजान। आपकी खदमत और एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं समन को लेकर अब यहाँ नहीं रह सकता। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सुकून मुयसर है और मैं इस सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहता। अली अकबर ने अपने बासूल और गैरतमंद बेटे को देखा। उनका सर फख्र और शर्मिंदगी के एहसास से झुक गया। वो जानते थे कि शाहजहां का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। शाम का वक्त था। शाहजहां अंदर दाखिल हुआ। वो दिन भर की तमाम मसरूफियात के बाद थका हारा लौटा था, मगर अपने घर के सहन में कदम रखते ही उसके चेहरे पर दिन भर की थकन यूं गायब हो चुकी थी जैसे कभी थी ही नहीं। समन लॉन के पास लगे गुलाब के पौधों को पानी दे रही थी। सफेद और गुलाबी रंग के सादा से सूट में दुपट्टा सर पर जमाए वो बिखरी जुल्फों के साथ बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। शाहजहां के कदमों की चाप सुनकर उसने मुड़कर देखा तो उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। समन ने पानी का बर्तन एक तरफ रखा और जल्दी से शाहजहां की तरफ बढ़ी। आ गए आप शाहजहां? समन ने आगे बढ़कर शाहजहां के हाथ से उसका ब्रीफकेस और कोट थामा। आ गया हूँ समन। शाहजहां ने गहरे जज्बे से अपनी बीवी के चेहरे को देखा। और सच कहूं तो पूरा दिन बस इसी लम्हे का इंतजार रहता है कि कब काम खत्म हो और मैं अपने घर, अपनी दुनिया में वापस लौटूं। समन के गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ती। उसने नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना शाहजहां, बातें बनवाने में आपका कोई सानी नहीं। आप जाकर फ्रेश हो लें, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। चंद ही मिनटों में शाहजहां शलवार कमीज जिप तन के लॉन में लगे लकड़ी के बेंच पर आकर बैठ गया। शाम की ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खिल रहे थे। समन एक खूबसूरत ट्रे में चाय की केतली, 2 कप और शाहजहां की पसंदीदा बेसन की बिस्किट लिए लॉन में आई। उसने चाय की मेज पर ट्रे पर रखी और चाय के कप में गर्म चाय अंडेलने लगी, जिसकी खुशबू से पूरा माहौल महक उठा। समन जैसे ही चाय का कप शाहजहां की तरफ बढ़ाकर वापस मुड़ने लगी, शाहजहां ने जल्दी से उसकी नाजुक कलाई थाम ली। शाहजहां, समन ने हैरत से उसे देखा। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हल्के से खींचा और उसे अपने बिल्कुल करीब बेंच पर बैठा लिया। कहाँ जा रही हो? चाय के लिए पीने के लिए नहीं मनवाई, बैठो यहाँ मेरे पास। शाहजहां ने प्यार भरे ताकुम भरे अंदाज में कहा। शाहजहां किचन में देगची रखी है, सालन देखने। समन ने बहाना बनाना चाहा, लेकिन शाहजहां ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। सालन कहीं नहीं भाग रहा समन। शाहजहां ने समन का हाथ थामकर उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में बेपनाह तरह मोहब्बत और तशक्कुर की चमक थी। समन, आज हवेली के हालात और अब्बाजान का रवैया देखकर मैं सोच रहा था कि उस दिन जब पूरा खानदान मेरे खिलाफ खड़ा था, जब हर शख्स मुझे गुनहगार और बेहया समझ रहा था, अगर उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा ना किया था तो शायद मैं टूट जाता। समन ने शाहजहां की बात सुनी तो उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अपनी दूसरी उंगलियों से शाहजहां के हाथ को मजबूती से जकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर नहायत पकीजगी और नर्म लहजे में कहा, मोहब्बत में भरोसा न हो तो फिर मोहब्बत नहीं होती वो शाहजहां। शाहजहां ने समन के उन अल्फाज को अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया। समन ने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे पता था मेरा शाहजहां कैसा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरी रूह गवाही देती है कि आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। जब दिल रिश्तों को सच्चे दिल से कबूल कर ले तो फिर हालात चाहे कैसे भी हो, कितने बुरे क्यों ना हो, यकीन का धागा कभी नहीं टूटता। शाहजहां का दिल समन की इस बेलोस चाहत पर तड़प उठा। उसे झुककर नहायत शिद्दत और मोहब्बत के साथ समन के कुशादा माथे पर अपने लब रखे और एक तवील बोसा दिया। समन ने हया से अपनी आंखें बंद कर ली। शाहजहां ने अपना सर उसके माथे से टिकाया और आहिस्ता से बोला, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी हमसफर दी। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मेरी हर अंधेरी रात को सुबह नूर में बदल दिया। थोड़ी देर के बाद समन ने खुद को संभाला और शाहजहां को अपने से जरा दूर करते गुस्सा दिखाया। बस बस, अब इतनी भी तारीफें न करें, वैसे मैं मगरूर हो जाऊंगी।
और देखिए चाय ठंडी हो जाएगी। शाहजहां ने हंसकर चाय का कप उठाया और एक घूंट भरकर कहा, जायका तो वही पुराना है, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम हवेली में ही रहती तो आज भी सबके लिए चाय बना रही होती। समन ने शाहजहां को घूरा और हल्की सी नोक-झोंक करते हुए बोली, "वो अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए चाय बनाने आई हूँ?" "अरे नहीं बाबा।" शाहजहां ने कानों को हाथ लगाया और शरारत से मुस्कुराया। "मैं तो ये कह रहा हूँ कि हवेली वाले बदकिस्मत थे, जो इतनी बेहतरीन शेफ और इतनी खूबसूरत दुल्हन की कदर न कर सके। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये तमाम नेमतें सिर्फ शाहजहां की मलकियत है।" "शाहजहां?" समन शर्मा कर अपना मुंह दुपट्टे में छुपाने लगी। "आप बहुत शरीर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन। शर्म नहीं, शरीर नहीं हूँ समन, अपनी मोहब्बत के हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ।" शाहजहां ने मुस्कुराकर समन का चाय का कप भी उसके हाथ में थमा दिया। "चलो, अब चुपचाप चाय पियो और मुझे बताओ कि आज दिन भर तुमने मुझे कितना याद किया?" "एक बार भी नहीं।" समन ने बनावटी बेनियाजी से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। "झूठी।" शाहजहां ने उसके रुखसार को हल्का सा छुआ। "तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं समन।" समन ने शाहजहां को देखा। दोनों की नजरें मिली और लॉन में उन दोनों के बेसाख्ता कहके गूंज उठे।